press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। मैं पिछली क्लास में फसलों से जुड़े त्योहार संक्रांति जो है उसको क्या है कुमाऊँ में गुगुतिया कह के पुकारते हैं। और यहाँ छोटे बच्चों के गलों में क्या करते हैं, माला को पहनते हैं। कौन सी माला? यानी जो आटा और गुड़ से बनाए हुए एक पकवान को विविध आकार देकर उस पकवान के बीच में क्या है संतरा यानी ऑरेंज और शुगर केन के जो पीस रहते हैं उनको डालकर एक माला बनाकर क्या करते हैं, छोटे बच्चों के गले में डाल देते हैं। और ये छोटे बच्चे क्या करते हैं, पक्षियों को खिलाने के लिए यहाँ पहाड़ पर आ जाते हैं। पहाड़ों में जो बहुत सर्दी या ठंड होने के कारण जो पक्षियाँ रहते हैं वो हवा से उड़ के जा देते हैं, लेकिन जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, पक्षियों को बुलाने के लिए एक गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? देखिए, कौवा आवो गुगुत आवो, ले कौवा बड़ो, माँ कही दे जा सोने का घड़ो, कालई पूरी माँ कही दे जा सोने की चूरी। देखिए क्या बोल रहे हैं, कौवा आवो ಅಂದರೆ कौवा का मतलब क्या है, ಕ್ರೌ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ, ಕಾಗೆ ಬಾ, ಗುಗುತ್ आवो, ಗುಗುತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನದ ಒಂದು ಫೀಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಗುತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗುಗುತಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗುಗುತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ನೀನು ಬಾ, ಲೇ ಕೌವಾ ಬಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು, ಆದರೆ ಮಾಕೈ ದೇ ಜಾ ಸೋನೇಕ ಘಡೋ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಏನನ್ನ ಇದೇನು ಡಿಶಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ತಂದು ಕೊಡು, ಸೋನೇಕ ಘಡೋ ಅಂದರೆ ಘಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ತುಂಬಿರೋವಂತಹ ಒಂದು ಮಡಿಕೆನ ಅಥವಾ ಪಾಟನ್ನು ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೈ ಪೂರಿ ಮಾಕೈ ದೇ ಜಾ ಸೋನೇಕಿ ಚೂರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲೈ ಪೂರಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಾಕಿದಾರಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶ್ಗಳನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಪೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ವಾನನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡು, ನನಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನನ್ನು ತಂದುಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೈಫ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. देखिए फिर क्या हो जाता है, इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं. देखिए यहाँ पक्षियों को खाना खिलाते खिलाते ये गाना गाते गाते अपने मन के कामनाएं यानी मन के जो विशस रहते हैं, कामना का मतलब क्या है, ವಿಶಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಏನೇನು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳು. ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ವಿಶಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಇದು ಸಿಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅವು ಪಕ್ವಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಶಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. देखिए चले चीज़ को वह मांगते हैं, है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के. देखिए ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ವಾ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, क्या करते हैं हम बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, हम बाहर खाना नहीं पकाते, हम क्या करते हैं सुबह उठ के घर में ही स्नान करके क्या करते हैं यहाँ से जो खाना पका के बॉक्स में डाल के कैरी करते हैं, बॉक्स को हमारे मनपसंद जगहों पर जाते हैं, जो टीवी स्टेशन पर जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं डैम को जाते हैं, कुछ लोग बाहर यही कोई भी जो मंदिर को जाते हैं, जाकर वहाँ पूजा करके क्या करते हैं अपने मनपसंद खेल को खेल के वो क्या करते हैं वही खाना खाकर शाम को या रात को घर वापस आते हैं. ऐसा हम यहाँ ಮನಾತೆ ಏನಾ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कई दूध चावल और गुड़ की खीर बनाती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है. देखिए
ಕೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, दूध और चावल गुड़ के जो पकवान बनाते हैं यानी दूध चावल और जो गुड़ रहता है जागरी रहता है इन्हें डाल के एक खिचड़ी बनाते हैं, स्वीट खिचड़ी को। और कुछ लोग क्या करते हैं जो अलग अलग 5 तरीके के दानों को डालते हैं, क्या उसमें क्या है ग्राम्स डालते हैं और क्या है कुछ लोग चावल और क्या है दाल डालते हैं, अलग अलग तरीके अलग अलग तरीक़ों के जो अलग अलग टाइप्स के जो दाल रहते हैं उन्हें डालकर 5 तरीक़ों के यानी 5 टाइप्स ऑफ जो ग्राम्स रहते हैं उन्हें डालकर क्या कहते हैं दानों को ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನು 5 ರೀತಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಒಂದು ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಚಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಪೊಂಗಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಿಚಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಖಾರವಾದಂಥ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. अर्थ आयता? ऐसा करते हैं कई लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। देखिए कई लोग ಅಂದರೆ कुछ प्रांतों में क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं सैलाब का मतलब है जो भरे हुए पानी का नदी के जो पानी रहते हैं उसे सैलाब कहते हैं। यानी जो खूब भरे हुए नदी के पानी में ಡೂಬ್ ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನದಿ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉಮಡ್ ಪಡ್ತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋಗ್ ठंड से टिटरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। देखिए लोग ठंड से टिटरते रहेंगे ಅಂದರೆ ಟಿಟರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಡ್ಗೋದು, ಶಿವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟಿಟರ್ನ का मतलब क्या है? टिटुरना टिटरना का मतलब क्या है? शिवरिंग। जो ठंड से लोग टिटरते हुए भी यानी जो शिवर होते हुए भी लोग क्या करते हैं लेकिन एक ना एक डुबकी तो पानी में क्या होना चाहिए, पड़नी ही चाहिए। ऐसा यहाँ वो अपने क्या करते हैं जो प्रथा रखते हैं, प्रथा का मतलब क्या है ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬರ್ಫೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ಫೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಥಂಡಿ ನೀರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದಾಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ जो क्या हो जाता है पानी में क्या हो जाते हैं बह के जाते हैं ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, बिलीफनेस। नदी का स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। देखिए हाल यहाँ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಳ್ಳಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तिल का हाल होती। तिल से याद आया मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। देखिए मैं बोली बहुत ही ज़्यादा, मैं पाठ से पहले से ही आपको बोल के आ रही हूँ कि तिल से गुड़ से ही ज़्यादातर डिशेस को मकर संक्रांति में बनाते हैं। वही यह कह रहे कि मकर संक्रांति के दौर पर क्या करते हैं, तिल डालना, आग में तिल डालना, तिल से क्या करना, तिल को हमारे जो सर है उस पर डाल के स्नान करना और तिल का दान करना, दान देना ಅಂದರೆ ದಾನ ಕೊಡೋದು, तिल को दान देना और तिल का पकवान बनाना यानी ತಿಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೀಸಮ್ ಸೀಡ್ಸಿಂದ, ತಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೀಸಮ್ ಸೀಡ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಎಳ್ಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಡೋದು, ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. रखता है तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। तुम्हारे घर यानी आपके जो हाउस में, आपके होम में इस
आपके घर के आसपास के जो लोग रहते हैं, आपके आसपास में जो घर में कैसे मकर संक्रांति को मनाते हैं, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप कैसे मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में आपको बोलना होगा। ऐसा यहाँ वो लड़की बोल रही है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। देखिए मैं बोली ना खिचड़ी, पहले ही मैं बोली आपको, खिचड़ी भी कहते हैं और पोंगल भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं, तिल संक्रांति भी कहते हैं। कौन कौन सा नाम दिए हैं, लोहड़ी, सरहुल, बिहू, ओणम, पोंगल, लोहड़ी, मैं बोली ना गुगुतिया भी कहते हैं। ये सारे जो नाम हैं, ये सारे नाम हैं, इनका अर्थ एक ही है, मकर संक्रांति। समझ में आ रहे हैं ना। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो, या इस सारे त्योहारों को छोड़ के तुम्हारे घर में जो कैसे बनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तुम्हारे घर के आसपास में कैसे मकर संक्रांति को मनाते हैं, और आपके घर में मकर संक्रांति को कौन सा नाम से पुकारते हैं, इनमें दिए गए नामों से अलावा को किसी भी नाम से आपके घर में पुकारते हैं क्या मकर संक्रांति को? ऐसा हो तो बताइए। हमारे यहाँ मैं बोल रही हूँ मकर संक्रांति मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, यानी मेरे घर में मकर संक्रांति ही बोलते हैं, है ना। और मैं बोली मेरे घर में क्या क्या करते हैं हम, जैसा तिल से स्नान करते हैं, मैं बाद में बोलती हूँ। यहाँ देखते हैं मकर संक्रांति कहते हैं, फिर अलग नाम से आपके घर में जो जानते हैं तो या पुकारते हैं तो बोलिए, कहते हैं तो बोलिए। या तुम फसलों से जुड़े, यानी इस क्रॉप से रिलेटेड फेस्टिवल रिलेटेड टू क्रॉप जैसा त्यौहार आप दूसरा कौन सा भी किसी भी त्यौहार को आप मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, बोलिए, ऐसा पूछ रहे हैं। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। देखिए सारा प्रश्न के उत्तर जानने के बाद, यानी आपके घर में, आपके घर के आसपास में जो कैसे लोग मकर संक्रांति को मनाते हैं और किन नाम से जो पुकारे जाते हैं या बोलते हैं, इसे सुनकर तुम्हें भी हैरान होगा, यानी ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಏನು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಏನಂದರೆ ಅವರು ಚಕಿತ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು, ಹೈರಾನ್ ಹೋನ ಅಂದರೆ ಚಕಿತವಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। जो हर एक घर में संक्रांति को अलग अलग क्या है, अपने रंग ढंग से अलग अलग तरीक़ों से मकर संक्रांति को मनाते हैं या जश्न को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए मैं बोली मेरी घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं बोली कैसे सुबह उठ के जो तिल को सर पर डाल के स्नान करते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं हमारे घर में जो भगवान के पूजा हो जाते हैं। भगवान की पूजा होने के बाद हम क्या करते हैं, घर में ही खाना पका के जो अलग अलग डिशेस हमारे मनपसंद डिशेस को, लेकिन एक डिश जो तिल से संबंधित यानी सीसम सीड से संबंधित एक डिश तो रहते हैं। हमारे घर में क्या करते हैं कि रोटियां बनाते हैं, जोवर की रोटियां, उनमें क्या डालते हैं, तिल को डालते हैं। यहाँ आ गए ना तिल, ऐसा हम तिल को डाल के रोटियां बना के और अलग अलग जो क्या है उनके साइड डिशेस भी घर में पका के बाहर जाते हैं, हमारे मनपसंद जगहों पर जाके वहाँ खाना खा के वहाँ खूब मस्ती करके शाम को घर को आते हैं। घर को आने के बाद हम क्या करते हैं, फिर तैयार होकर क्या करते हैं, अपने जो बड़े रहते हैं, अपने रिलेशंस रहते हैं और अपने आसपास के जो लोग रहते हैं, हमारा फ्रेंड्स जो रहते हैं, हमारे रिलेशन में बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, उनको क्या करते हैं, हम हाथ में तिल, गुड़ और मैं बोली ना मिश्री का मतलब है वो भी एक तरह का ಸ್ವೀಟ್ है, वो ಶುಗರ್ से बनाते हैं, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಂಡು ಬೆತ್ತಸಿನಂತಹ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು। ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ। ಆ ರೀತಿ जो पैकेट्स मिलते हैं हम वो घर में ही बनाते हैं। वो छोटे छोटे क्या करते हैं, कोकोनट्स को काट के उसमें डालते हैं, डालकर क्या करते हैं वो सारा मिक्स करके तिल
जो कोकोनट के पीसेस को और गुड़ के छोटे छोटे पीस को और मिश्री के पीस को सारे जो रहते हैं वो मिक्स करके हम हमारे बड़े लोग जो रहते हैं उनको हाथ में देकर उनका पाँव को छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा हमारे घर में मनाते हैं मकर संक्रांति को। आपके घर में कैसे मनाते हैं, आप क्या करना चाहिए मुझे बोलना चाहिए। समझ में आ रहे हैं ना, आपस में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम जाते हैं अभ्यास के और। देखिए यहाँ आपके जो फसलों के जुड़े हुए त्यौहार जो हैं पूरा हो गया। और मैं एक बात आपको बोलने को भूल गई, क्या है कि यहाँ मकर संक्रांति के जो दिवस पर ज़्यादातर तिल का और गुड़ का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है बच्चों। क्या है कि तिल में और गुड़ में क्या है, ज़्यादा उष्णता यानी इसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं, यानी ये हीट भरी हुई एक चीज़ है। ये दोनों भी क्या है, तिल और गुड़, इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये ज़्यादा जो विटामिन्स है बहुत अच्छी तरह से, जो अच्छे अच्छे विटामिन्स है ये इन दोनों पदार्थों में बहुत अच्छी तरह से है। इनको खा जाने से हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे जो क्या है ब्यूटी भी बढ़ जाते हैं, और क्या है हमारे अंदर हम जो बहुत ही मोटे रहते हैं ना, हम पतले बन जाते हैं, और हमारे जो आरोग्य की स्थिति है वो बहुत ही सुधर सी जाती है। और ये ठंड की जो मौसम में खाने से हमारे अंदर में जो क्या है रहे हुए जो ठंड का ऐसा में जो फील रहते हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे स्नायु जो है वो बहुत ही फिट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, हमारे बोन्स जो है, स्नायु जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। बहुत सारे फ़ायदा है तिल और गुड़ खाने से। आपको किसी ने भी तिल और गुड़ दिए तो आपको ठीक तरह से खाना होगा, उसे वही छोड़ के नहीं आना होगा। समझ में आ रहे हैं ना, किसी ने भी आपको तिल और गुड़ को खाने के लिए दिए तो आपको ठीक तरह से खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन्स भरे हुए दो चीज़ें हैं। और मकर संक्रांति के दिन में जो सर्दी का दिन रहते हैं ना, इसलिए जो हीट भरी हुई ये दोनों पदार्थ जो है इनको खाने के लिए देते हैं। समझ में आ रहे हैं ना। अच्छा, अभ्यास की ओर हम चलते हैं। मौसम का अंदाज। खिचड़ी में आयसन ज़्यादा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। मैं बोली पाठ के समय में आप लोगों को बोली मैं क्या है, खिचड़ी का मतलब क्या निकाल रही हो। इस वाक्य में जो दिए गए हैं, खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो देखिए, सूरज बिल्कुल ही ना निकले ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆನಾ. ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. और सारे प्रोटीन्स जो है उन्हें लेकर हम जी रहे हैं। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनको भी, जो नदी है, इस सारे चीज़ों को, जो प्राकृतिक चीज़ों को सूर्य की किरण की सख्त आवश्यकता है। अगर सूर्य नहीं आए तो सूर्य का पैदा ही नहीं, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ प्राकृतिक व्यत्यासಗಳು आगुते। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो, आपको भी क्या क्या हो लेता है सूर्य ना आ जाने पर, ऐसा आपको लिखना चाहिए। वहाँ यहाँ वो जगह दिए हैं उस पर लिखिए। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। देखिए, बाहर देखने से मैं बोली जो पाठ में दिए गए हैं, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा नहीं होता है। कब नहीं होता है, रेनी सीज़न में या विंटर सीज़न में हम देख सकते हैं। तो सर्दी के या बारिश के मौसम जो रहते हैं, हम बाहर देखें तो भी जो दिन में सारा दिवस एक ही तरह से नज़र आता है और हमें सूरज नहीं दिखता है। और हमको जब हम घड़ी देखते हैं तो यानी हमारे जो वॉच रहते हैं उन्हें देखते हैं तो हमें
जो टाइम का पता चलता है, क्यों नहीं पता चलता है कि इनमें जो सूर्य है वो ढक सा जाता है, यानी बादल में चुपके रहता है, या सूर्य का किरण जो है वो भूमि पर कम पड़ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है हमें टाइम का कुछ भी नहीं पता चलता। क्योंकि जो पिछले ज़माने में घड़ी नहीं थे, हमारे जो पुरखे जो रहते थे, पुरखे का मतलब क्या है, जो हमारा ಹಿಂದಿನವರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, जो रहते थे वो क्या करते थे, सूरज को देख के, यानी सूरज के जो किरण थोड़ा कम पड़ने से क्या हो जाता है सुबह, और सूरज की किरण जो सर पर आए तो क्या हो जाता, यहाँ जो दोपहर का समय है और सूरज का किरण सर से, सूरज की किरणों जो है वो सर से निकल जाए तो क्या है, नीचे आए तो वो शाम हो जाता, और सूरज डूब जाए तो क्या हो जाता, नाइट हो जाता। ऐसा सूरज आने पर ही क्या हो जाता था, हमें समय का, हमें यानी हमारे पुरखे जो है उनको टाइम का पता चलता था। लेकिन आजकल के ज़माने में जो वॉचेस आ गए हैं, हम वॉच को देख के ऐसा पता कर सकते हैं कि टाइम क्या हो गया है ना। और हमारे जो शैडोज़ जो रहते हैं वो शैडोज़ को देख के भी क्या करते हैं, आपको साइंस के पार्ट में आए होंगे कि शैडोज़ को देख के जो टाइम को कैसे अंदाज़ा करते हैं, आपके साइंस के चैप्टर में आए हैं ना। ठीक उसी तरह वही पूछ रहे हैं यहाँ, कैसे आपको सूरज नहीं होता तो कैसे यानी इन समयों में, पुराना समयों में कैसे टाइम को देखते थे, पता लगाते थे, ऐसा पूछ रहे हैं। तुम्हारी जुबान, आज ही लोग के उठे ना उठे के नहीं के कहाँ, देखिए कि मैं क्या बोली है, बिहारी का जो लैंग्वेज है, जा बाग के देख केरा के पता आयल की ना, इन वाक्य को अपने घर की भाषा में लिखो। देखिए अपने घर में क्या क्या बोलते हैं, कन्नड़ में ही सही आपको लिखना चाहिए। आज ही लोग के उठे नहीं काका, अंदर नान ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, आज ही आप लोग उड़ते हैं या नहीं, ऐसा यहाँ पूछने का मतलब है। जा बाग के देख केरे के पत्ते आयल की नहीं, जाओ बाग के देखो, वहाँ केरे का पत्ते का मतलब मैं क्या बोली आप लोग को, केरे का मतलब है बनाना लीव्स, यानी केला का जो पत्ते हैं वो आए हैं या नहीं, जाओ बाग के देखो, ऐसा यहाँ लिखना चाहिए आपको। भारत तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है, फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी कक्षा में प्रस्तुत करे। देखिए विविधता में हमारे देश पहचान है, अंदर जो भारत है विविधता में एकता हम देखते हैं भारत में, है ना। बहुत सारे रिलीजन हैं भारत में और बहुत सारे जो अपने आचार विचार को मनाते हैं, और बहुत सारे जातियां हैं, जनांग है, धर्म है, उस तरह के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं भारत में। जो फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूप में एक उदाहरण है। नीचे विविधता कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं विविधताओं में। यहाँ हमें मकर संक्रांति के विविधताओं में बारे में दिखाए हैं, है ना, इस पार्ट में। यहाँ भाषा के दिखाए हैं, कौन कौन से लैंग्वेज है और किस किस प्रांतों में वैसा लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। भाषा का मतलब क्या है, कौन कौन सा लैंग्वेज को किस किस जो प्रांतों में यूज़ करते हैं, ऐसा यहाँ लिखना चाहिए। कपड़े, यहाँ क्या है, अलग अलग स्टेट के जो कपड़े रहते हैं अलग अलग होते हैं, वहाँ भी हम लिखना चाहिए। कपड़े कौन कौन से प्रांतों में कैसा कैसा होते हैं, कैसा कैसा कपड़े पहनते हैं, वो भी लिखना चाहिए। नया वर्ष, यानी जो न्यू वर्ष जो आते हैं, यानी न्यू ईयर जो आते हैं, हमारे यहाँ युगादि में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जो अंग्रेज़ी में क्या है नया वर्ष, यानी जो जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। भोजन, यानी खाने पीने का चीज़ जो है वो भी अलग अलग होता है ना। ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ, ನಾವು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ। और क्या है लोक कला, लोक कला का मतलब क्या है, अपने जो क्या है संस्कृति है, जो है अपने जो कल्चर है वो भी क्या है, उसमें भी विविधता है। लोक संगीत, लोक संगीत यानी जो म्यूज़िक रहते हैं, यहाँ हम कुछ तरह के म्यूज़िक
म्यूज़िक को करते हैं। और जनपद ಅಂದರೆ फोक सॉन्ग्स जो रहते हैं वो भी अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रांतों में होते हैं, उनको भी आपको पहचान के यहाँ लिखना चाहिए। आपको यहाँ जानकारी, चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री, किसी भी सामग्री को लेके आप यहाँ कर सकते हो। ये एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह है। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या का क्या रहती है? देखिए, तुम्हें कौन सा ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸದಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬನೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತೀರಲ್ವ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಹಬ್ಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸದ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನೀವು ಏನೇನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. एक छोड़ी ना मैं यहाँ देखिए, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनाता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो. देखिए, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಿಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಶಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿಲ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ತಿಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆನ, ಹೌದಾ, ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಶೇಂಗಾದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಸಾನ್ और चीज़ों का सफ़र. देखिए, किसान और खेती बहुत लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖೇತಿ ಬಾರಿ ಕರ್ನ ಬಹುತ್ ಹಿ ಬಡಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಹೈ, ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈತರು, ಹೌದಾ. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. जो फसल उगाने के लिए वो बहुत ही क्या करते हैं, कष्टों को सहते हैं. वो बारिश में भी काम करना पड़ता है, जो क्या है बहुत सारे धूप में, यानी सूर्य की किरण ज़्यादा पड़ने में भी उनको काम करना पड़ता है. जो सर्दी में भी उनको काम करना पड़ता है. वो क्या है, दानों को या उनके सीड्स को बोया करना पड़ता है. बोया करने का मतलब क्या है, ಬಿತ್ತೋದು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಬೆಳೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಅವ್ರದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೈತರದು, ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಸಾಕಾಗೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಥಂಡಿ ಏನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ಅವ್ರ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ರೈತರು ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. इलेन कोटिदारे आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी का आइसक्रीम, 3 चीज़ों को बारे में नीचे दिए गए हैं. बिंदुओं को रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो. किन चीज़ों से बनती है. ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಾಸ್ ಪಕ್ವಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಖಾಸ್ ಪಕ್ವಾನ್ ಯಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್. गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है. हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह है जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है. अपने परिवार के लोगों को पता करके उनके बारे में पता हो. देखिए, गया शहर यहाँ दिए गए हैं कि गया ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಊರು. ಇಲ್ಲಿಂದ जो क्या आए थे यहाँ, तिलकुट, तिल, गुड़ आए थे ना. ऐसा यहाँ अलग अलग जो प्रांतों के अलग अलग डिशेस रहते हैं. आपको उनके बारे में क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए और पूछना चाहिए. ऐसा यहाँ कह रहे हैं. यहाँ दावणगेरे के बहुत अच्छा डिश कौन सा है, क्या है, बेन्ने डोसे है. ऐसा अलग अलग प्रांतों के जो हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो हैं, उनके ही एक अलग तरीक़ा का डिश रहते हैं. उनको आपको पता लगा के यहाँ लिखना होगा. देखिए, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना. इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है. इसके बारे में ग्रामर के बारे में मैं एक अलग क्लास लेती हूँ. उसमें उस क्लास में आपको क्रिया के बारे में ठीक तरह से बताती हूँ. यहाँ के देखिए, उन क्रिया के संबंधित कुछ वर्ड्स को यहाँ दिए गए हैं. चौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना.
ये सभी क्या है, क्रिया के संबंधित वर्ड्स है। बंगाली खिचड़ी, यहाँ जो दिए गए हैं, जो खिचड़ी कैसे बनाते हैं ऐसा ये सामग्री को दिए गए हैं और कितने कितने प्रमाण में इन सामग्रियों को हमको डालना चाहिए पकाने में, वो दिए हैं। देखिए, अदरक 20 ग्राम दिए गए हैं, लहसुन 3 फाके दिए गए हैं, इलायची के दाने 3 चोटी, दालचीनी के दाने, ये जहाँ सारे क्या हैं, मसाला आइटम्स है। और क्या है, पानी या मूंग दाल को हाफ प्याला डालना चाहिए, सरसों का तेल को, तेज के पत्ते, जीरा, प्याज बारीक कटा हुआ यानी फाइनली कट पीसेस, सरसों का तेल, तेज पत्ते, जीरा, चावल धुले हुए का मतलब क्या है, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, जैसा धुले हुए वाश करके। फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए, मटर के दाने, धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्ची पिसी हुई का मतलब क्या है, उनसे जो छिलका निकले हुए, लाल मिर्ची, चीनी पिसी हुई का मतलब पाउडर भी आ सकते हैं, घी, नमक और हल्दी। इनको बनाने का विधि यहाँ नीचे आप लोगों को दिए गए हैं। इलायची, दालचीनी और लौंग थोड़ी पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। ये सारे जो मसाले दिए हैं उनको क्या करना चाहिए, पेस्ट बनाना चाहिए ग्राइंडर में। और क्या है, दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी बुरे, क्या मैं ही ऐसा बोल देती हूँ, जो दाने दिए गए हैं इसमें उसको क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए अच्छी तरह से कुकर में या अपने कढ़ाई में बॉईल करके। ये सारे जो पेस्ट करे हुए जो मसाले आइटम्स है इनको भी हम क्या करना चाहिए, इनमें डालकर 3 या 4 विज़ल बना के क्या है, उतराना चाहिए। ऐसा यहाँ खिचड़ी बना सकते हैं। मैं पहली क्लास में ही आपको बताई थी, खिचड़ी 4 तरह के बनाते हैं, स्वीट से भी बनाते हैं, 5 दानों को मिला के ही, यानी यहाँ जो ग्राम्स रहते हैं 5 तरह के अलग अलग दानों को मिलाकर भी खिचड़ी बनाते हैं। ऐसा यहाँ जो है ಖಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। अच्छा बच्चों, ये फसलों से जुड़े हुए त्यौहार आज पूरा हुआ। आप लोगों को ठीक तरह से घर में पढ़ना होगा और इसके संबंधित अभ्यास प्रश्न में आप लोगों को पूछी उनको इसमें ही लिखना चाहिए और ठीक तरह से पढ़ना चाहिए।